پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے عہدیداران نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی صحتیابی کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عہدیداران نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا، جہاں پر بدستور ان کا علاج جاری ہے۔ موقع پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سیف چودھری، مشہور بزنس مین عاصم یوسف، سابق ورلڈ چیمپئن کیسر خان، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے ابرار میر، اسد نواز اور کونسلر کیسر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ میری درخواست ہے پوری گریٹ بریٹن سے، برطانیہ کی پوری قوم سے، کہ وہ اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اسپیڈی ریکوری کے لیے، سو دیٹ ہی کین لیڈ دا کنٹری اگین فرام فرنٹ اگینسٹ دس کرونا وائرس۔ پلیز اف یو وانٹ ٹو سیو یور لائف اسٹے ایٹ ہوم۔ یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، تو پلیز اس کے اوپر ذرا سختی سے عمل کریں اور گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو گورنمنٹ اور NHS کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو اس وائرس سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ ہم بزنس کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بورس جانسن کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو کے واپس آئیں۔ ان کی پالیسی سے برٹن بڑی ترقی کر رہا تھا، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ملک کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف UK بورس جانسن کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ کرے۔ ہماری دعائیں پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ ہیں، جو اس وقت شدید ذلیل ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس پینڈیمک میں جو لیڈرشپ کوالٹی بورس جانسن نے دکھائی، جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے قوم کو دیا اس وبا سے لڑنے کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی قابل تعریف ہے، اور ہماری دعائیں بورس جانسن کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہو کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ واپس آئیں اور اس مشکل وقت میں قوم کو دوبارہ سے لیڈ کریں۔ گزشتہ دنوں ان کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں، لیکن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ انفارمیشن دی گئی کہ ان کا علاج بدستور جاری ہے۔ قاتل وائرس کا خونی وار کینیڈا میں بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,276 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 435 افراد اس مہلک وائرس کے باعث لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تفصیلات عدیل ڈینیل کی اس رپورٹ میں۔ قاتل وائرس کے جان لیوا وار نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,276 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 435 افراد اس مہلک وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے۔ مہلک وائرس جہاں ایک طرف قیمتی جانوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے، وہیں اس وبا سے معیشت اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کاروباری حضرات کے لیے شرائط میں نرمی کرے گی تاکہ معیشت جلد بحال ہو سکے۔ دوسری طرف کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں بھی 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ حالات کے پیش نظر مینیٹوبا کی 150ویں سالگرہ کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ترکی میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 87 اموات ہوئی ہیں، 4,112 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں استنبول میں موجود اپنے نمائندے عاطف بٹ سے۔ عاطف بٹ آگاہ کریں۔ جی، پوری دنیا کی طرح ترکی میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ترکی میں کرونا وائرس کے 24,900 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 4,112 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 38,226 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ترکی میں 87 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ٹوٹل جہاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے 812 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی قونصلیٹ اور انکا ایمبیسی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک PI خصوصی فلائٹ کے لیے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ جو ہی ہمیں کوئی اطلاع ملے گی ہم اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو انفارم کر دیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی ٹکٹ وغیرہ پرچیز کی ہے تو اس کے نفع نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہم ان سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں تک مسحور ہیں۔ جو ہی ہمیں اطلاع ملے گی ہم ان کو انفارم کر دیں گے۔ جی، ترکی کے شہر استنبول میں پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے مستحق پاکستانی افراد کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ راشن کو ضرورت مند افراد تک پہنچانے کے لیے ترکی میں دعوت اسلامی کی امیر شہاب الدین اتاری کی ٹیم نے بھرپور مدد کی۔
तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तांबुल में लॉकडाउन की वजह से गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इन्हें खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत का सामना है। इन अफराद ने 92 न्यूज़ की तवस्सुत से मदद की अपील की, जिसके बाद पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से इनके लिए राशन का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान कौंसलेट का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त उन लोगों ने पाकिस्तान कौंसलेट ने उन लोगों की मदद की है जो 1000-1200 लीरा की सैलरी में यहाँ काम कर रहे हैं और अपना और अपनी फैमिली का पेट पालते हैं। पाकिस्तान कौंसलेट ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। अदावत इस्लामी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा का कहना था कि जिस हद तक हुआ मुस्तहिक अफराद की मदद करेंगे। आज के राशन को इन अफराद तक पहुँचाने के लिए तुर्की में दावत इस्लामी के अमीर शहाबुद्दीन अतारी की टीम ने भरपूर मदद की। कैमरा टीम के साथ आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। कोरोना वायरस से दुनिया के बेशतर ममालिक में ज़िंदगी मफलूज है, मगर स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज भी एमरजेंसी सर्विसेज और हम वतनों की मदद के लिए खुला है, जो दुनिया के दीगर काउंसिल खानों और सफारत खानों के लिए रोल मॉडल है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। जानलेवा कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने न सिर्फ हुकूमतों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है, बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगी भी अजीरन बना के रखती है। दुनिया के बेहतर ममालिक में लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी मफलूज है, मगर इन मुश्किल तरीन हालात में भी कुछ फ़र्जशनास ऑफिसर्स या इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ऐसी ही एक शख्सियत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी की है, जिन्होंने लॉकडाउन और संगीन सूरत हाल के बावजूद न सिर्फ कौंसल खाना खुला रखने का फैसला किया है, बल्कि हेल्प डेस्क कायम करके हम वतनों को आज भी हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी हमें इजाज़त दी हुई है हेड्स ऑफ मिशन को, जिसकी वजह से हमें फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये जो कौंसल खाना है ये एक वेलफेयर कौंसल खाना है, इसलिए ये बंद नहीं हो सकता। और उसकी वजह यह है कि वीज़ाज़ स्टैम्प करना और पासपोर्ट्स देना कौंसलेट्स का वाहिद फंक्शन नहीं होता। कौंसलेट्स को क्राइसिस के अंदर लीडरशिप रोल गवर्नमेंट का प्ले करना पड़ता है होस्ट कंट्री के अंदर। तो इस वजह से कौंसल खाना खुला है। तो कम्युनिटी को मेरा ये पैगाम होगा कि प्लीज़ पैनिक ना करें, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत का जो वो ख्याल रखें, ग्लव्स पहने। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ये फर्जशनास ऑफिसर न दिन देखता है न रात। कभी तो साइलिन की दरखास्तों पर नकद मदद के लिए साइन कर रहा होता है और कभी मुश्किलात में घिरी फैमिलीज के घरों में राशन और खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए तगदौ में मसरूफ होता है। ये बाहिम्मत शख्स मुश्किलात से लड़ने का हुनर भी जानता है और उन्हें हल करने का अज़्म और हौसला भी रखता है। इसका कहना है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की हर अजीज शख्सियत बन चुका है, बल्कि वो दुनिया भर के कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए एक रोल मॉडल भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों की मदद के लिए पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम मैदान में आ गई। 100 ख़ानदानों को महीने भर का राशन मुहैया किया जा रहा है। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी फैमिलीज को राशन मुहैया किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दालें, दूध और दीगर रोजमर्रा की अशिया शामिल है। PEF के सदर मुनीर अहमद शाद और शेख सईद अहमद का कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो 100 खानदानों को राशन मुहैया करें। उसके साथ ही वो मुश्किलात में घिरे दीगर गैर मुल्कियों की मदद को भी यकीनी बना रहे हैं। हम इनिशियली 100 फैमिलीज को सपोर्ट करने जा रहे हैं, 100 फैमिलीज पाकिस्तानी और अदर देन पाकिस्तानियों को भी करेंगे, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है लोगों को सैलरीज की प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का अपनी पाकिस्तानी भाइयों को सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह जो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और स्पेशली जो मुस्तहिक गरीब लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं फूड। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका मुबारकबाद देता हूँ और
रियाद में मैंने देखा है कि माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो इस खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स के अलावा दीगर ममालिक के वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके लिए जहां मुख्तलिफ सऊदी तंजीमें राशन पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं पर पाकिस्तानी मुहैयर हजरात और सियासी समाजी तंजीमों का भी किरदार अहम है। फनकार किसी भी मुल्क में हो, किसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हों, एक चीज़ उनके लिए ऑक्सीजन का काम देती है और वो है मुआशरती राब्ते। कोरोना वायरस ने लंदन में मुकीम फनकारों से मुआशरती मेल जोल, आर्ट और फ़न की तकरीबात भी छीन ली हैं। उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन और गिरदोनवा से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी फनकारों की शामों से सजी महफिलें और संगीत समेत दीगर तफरीही प्रोग्राम मुलतवी होने की वजह से यहाँ के मुकामी फनकार भी दीगर बरतानवी बाशिंदों की तरह घरों में महसूर हो चुके हैं। हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग सब कुछ छोड़ के अपने ऑल प्रोग्राम सब कुछ और घर पे बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो मेरी सब लोगों से, सब दोस्तों से, सब पूरी दुनिया के जहाँ पे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग घर पे स्टे करें। लंदन के मुकामी होटल और कम्युनिटी हॉल्स में सजने वाली तकरीबात कोरोना वायरस के खौफ से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की हुई हैं। लंदन की शामें भी उदास रहने लगी हैं। जिस शहर को सिटी ऑफ आर्ट कहा जाता था, आज वहाँ हर तरफ उदासी और वीरानी ने घर कर लिया है। लंदन में बसने वाली एशियन कम्युनिटी में हर दिल अजीज फनकार भी अपने चाहने वालों को मोबाइल फोन और इंटरनेट पर पैगामात भेज कर खैर आफियत दरियाफ्त करने लगे हैं। मेरा गुजारिश है आप सबको, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसीलिए हम सबको घर में रहना है, घर में महफूज रहना है और सारी दुनिया को भी महफूज रखना है। कोरोना वायरस के हवाले से सारा कुछ बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर मिला कि आप लोग कहीं बाहर ना जाएं, कहीं किसी गैदरिंग में ना जाएं। तो ये कि अभी घर बैठना पड़ रहा है हमें, बड़ा मुश्किल है इस, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अगर बाहर जाएंगे तो समझ लें कि मौत को दावत है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस वक्त इंटेंसिव केयर में है, काफ़ी मामला संगीन है। तो बहरहाल मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप घर बैठें, अपने आप को बिज़ी रखें। काम घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई निकला रहता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ फनकारों ने इस मौके पर तख्लीकी कामों में मजीद काम करने को तरजीह भी दी है और कहा है कि इनको बहुत वक्त मिल गया है कि वो घरों में रहकर अपने फन में निखार ला सकते हैं और अच्छे वक्त में फिर से लोगों के लिए नए गीत और म्यूजिक मुतारिफ करवा सकते हैं। आप सब आर्टिस्टों को भी उसी तरह अप्रिशिएट करें, चूँकि इस मुश्किल वक्त में भी वो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ ब्रिलियंट, इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन of which artists are giving. So इसके साथ साथ हम सब लोग दुआ गो हैं, क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह है, एक इंटरनेशनल हब है जहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो अचानक लॉकडाउन होना इट वाज़न्ट ईजी, आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ लोग यूज्ड टू हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। हम सबको पॉजिटिव वाइब्स देने हैं एक दूसरे को। फनकारों का मजीद कहना है कि तकरीबात का ना होना इनके लिए परेशानी और उदासी का बायस है, मगर इस मोहल्लिक वबा के माहौल में सबके लिए घरों में रहना ही आफियत है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन हुआ तो पार्क्स और ट्रेल्स भी बंद कर दिए गए, लेकिन इस्लाम आबाद के बासियों ने वर्जिश के लिए ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब करके मुश्किल आसान कर ली है। तफसीलात जानते हैं फैयाज महमूद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में लॉकडाउन जारी, मार्केट्स, पार्क्स, ट्रेल्स सब कुछ बंद। हुकूमती पॉलिसी पर अमल कराने के लिए पार्क्स के बाहर रुकावटें भी खड़ी कर दी गयी। वर्जिश करने के लिए जब कोई जगह न रही तो इस्लामाबाद के बासियों ने ग्रीन बेल्ट्स को ही जिम बना लिया। देयर इज नो हार्म अगर वो एक एज अ इंडिविजुअल आए रोड पे और वो अपनी वॉक कर लें। ऑब्वियसली पार्क्स को बंद किया गया क्योंकि लोगों को क्राउड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। सड़क किनारे वर्जिश करने वाले कहते हैं लॉकडाउन की हुकूमती पॉलिसी दुरुस्त है, मगर वर्जिश के जरिए भी कोरोना को मात दी जा सकती है। इम्यून सिस्टम जो है सबसे बेटर इंसान को ना एक्सरसाइज, रनिंग्स, इन चीज़ों से करना चाहिए। पर गवर्नमेंट का भी है कि लॉकडाउन भी ज़रूरी है। अपनी बॉडी हेल्दी रखें, इनएक्टिव ना रखें। इनएक्टिव जितना रखेंगे तो आप अपना इम्यून सिस्टम को उतना ही डीएक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली एक्टिव हों।
साइकिलिंग और भाग दौड़ करते शहरी कहते हैं कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है, मगर सेहतमंद जिंदगी का राज वर्जिश में ही है। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ फैयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।